السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وفہما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام تعریف تحمد و ثنا رب ذوالجلال کُنتھ، بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت۔ بہرحال یت زن تھی ساری زانان اور میں تہ برونٹھے تہ اعلان کریو کہ آزک درس یس زن یہ مشتمل تت خاص یس زن مدعا یا یس زن خاص آز اسلاموفوبیا استعمال کران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس ذاتس پہ اٹیک کرنے خاطر سہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہان تہد نکاح۔ بہرحال انشاء اللہ رحمان آز کس درسس مز کرو اس کوشش تمن جوابن یا تمن سوالن یا تمن اعتراضن ہند جواب دن اور یہ زن درس آزک دنک یہ زن بنیادی مدعا تو مقصد سہ بنیادی طور پر یہ کہ اس گژھِ 100% بلکہ 100 کھۄتہٕ زیادہ یقین آسن ات کتھ پہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی صرف ہمارے واحد قائد اور رہنما ہیں اور انہی کی اتباع میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور دویم چیز چھس بہ ام درس تل یہ تہ تامت واتناون یسن کہ دین اسلام انتہائی مکمل تو یہ زن مکمل اور کمپلیٹ دستور حیات، اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے ازک درس کرو اس سمجھنے کوشش بالخصوص یم زن عمر یم زن واریاہ یا یم زن ان پڑھ حضرات بہرحال ان کو شاید آج کا درس اتنا سمجھ نہ آئے، مگر بہرحال تو گژھِ تمن اطمینان کہ ات کتھ تہ جواب اور اس کے بھی زن احادیث میں یا شریعت میں اس کے بھی جوابات ہیں۔ گۄڈنِچی کتھ یس زن تہ یاد تھٲیِو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہان ہندس نکاحس متعلق، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانے روایت کرن اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور اس کا نمبر ہے 3894۔ نمبرنگ میں اس لیے دیتا ہوں تکیاز آز کرزیو تہ ات پہ یہ تھوڑا بہت کیاز کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اشکال مت ہو کہ اس نے ہوا میں کوئی بات کہی، اس لیے پورا آتھینٹیکیٹ کرنے خاطر میں نے آج لکھ کر لایا ہے کہ کس حدیث کا کون سا نمبر ہے۔ بخاری شریفس میں حدیث نمبر 3894 اور اس کی روایت خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی ہیں۔ وہ اپنے نکاح کا جو قصہ ہے یا نکاح کا جو واقعہ ہے اس کو خود وہ بیان کرتی ہیں۔ بہرحال یم روایت کرن کہ میرا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے پہلے 3 سال ہوا، یعنی ہجرت برونٹ 3 وری سن 10 یہ زن نبویش، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں کتنے سال رہے؟ 13 سال، تو ہجرت سے پہلے 3 سال گو مطلب 10 نبوی میں، مگر 10 نبوی کا یہ آخری مہینے تھے یہ۔ بہرحال تم ساتنس گسن نکاح جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہان ہند کمن ست؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حدیث میں یہ نہیں ہے مگر مسلم شریف میں اس کی یہ زن ڈیٹیل اس پر کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تشریف لاتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب انتقال ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال سن 1090 میں ہی ہوتا ہے، جس کو عام طور پر عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، تکیاز ات مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن انتہائی قریبی رشتہ دار حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب یم زن ظاہری سہارز آسن ان دونوں کا انتقال اسی سال میں ہوتا ہے، تو اسی لیے اس سال کو کہا گیا ہے عام الحزن۔
बहरहाल हज़रत सौदा हज़रत खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और उन्हें निकाह की तरगीब दिलाते हैं। यानी तुम कारण क्या माइल और उन्हें कायल करते हैं निकाह करने के लिए। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें वापस कहते हैं कि क्या आपकी नज़र में कोई लड़की या कोई औरत है, क्या चाहे नज़र में छा कहाँ खातून। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल के जवाब में हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं एक कंवारी है, दूसरी यजन वो मुतल्लिका है। यानी अख कंवारी ब्याख मुतल्लिका नहीं बल्कि दूसरी बेवा है। बहरहाल बेवा वो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कहती हैं और जो ये कंवारी हैं उनके बारे में हदीस में अल्फाज आते हैं कि दुनिया में जो सबसे महबूब इंसान आपको है उसी की बेटी है। यानी इशारा किन की तरह था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। और हदीस में आमद बुखारी शरीफ में ही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3895 हदीस उसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत आयशा सिद्दीका को एक मर्तबा फरमाया कि ए आयशा फिरिश्ता मुझे आपके निकाह के बारे में आपकी तस्वीर को लेकर या आपकी शक्ल को लेकर आया ख्वाब में और मुझे आपको 3 मर्तबा दिखाया गया और कहा गया कि ये आपकी बीवी है या सब बच्चे ज़ौजे मोहतरमा। तो मुझे कहा गया कि इसे देख लीजिए। जब मैंने आपसे पर्दा सरकाया तो मैंने आपको पाया। तो ये निकाह किन की असल में मर्जी से हुआ, किन के हुक्म से हुआ, हजरत अल्लाह जल्ल शान गो अत मज अगर कह एतराज मुसलमान गि कम अज कम एतराज आसन कह। दूसरी बात ये जन हजरत खौला ये जन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहरहाल हजरत आयशा का भी अब ये जन उमन हिंद तिश वनान और कमन हिंद वनान हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें दोनों तरफ बात करने को कहते हैं। यानी आप वहां भी बात कीजिए और यहाँ भी बात कीजिए। बहरहाल हजरत सौदा से तो बात चलती है तो वो तो आम वो तो फिर निकाह हो गया। ये जन हजरत सौदा बने दयम ज़ौजे मोहतरमा कमन हिंज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब हजरत ये जन आयशा सिद्दीका का निकाह है। बहरहाल मुस्लिम शरीफ में इसकी डिटेल्स हैं। हजरत सौदा यम सातन जन गसन हजरत उम्मे रोमान निश उम्मे रोमान हजरत आयशा सिद्दीका हिज मौज आसन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिज खानदान। तो बहरहाल उनसे वो बात करती हैं हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बारे में कि आपका क्या ख्याल है अगर आप अपनी बेटी का निकाह किन के साथ करेंगे। हजरत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती है। यानी क्योंकि सबसे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के घराने में। हजरत अबू बकर सिद्दीक सुन योतन सो घर जो पूरे का पूरा घर क्या था मुसलमान। अब सबसे ज्यादा ताल्लुकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन के साथ थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के लिए कहें तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मगर चूंकि अरब में दस्तूर था वो अपने खामद के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे, इसलिए यमो को अमसातन उमन कि यीन म्योन खानदार यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक उनसे मशवरा होगा, उनकी इजाजत अगर होगी तो अल्लाह बिस्मिल्लाह तिलशन अम खुद बेहतरीन रिश्ते का। तो इसी असना में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब हजरत उम्मे रोमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के बारे में कहते हैं यानी हजरत सौदा ही लाई थी ये पैगाम, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले इस खबर को सुनते ही वो चौंक जाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक क्यों चौंक जाते हैं। रिवायत में आता है और उन्होंने सवाल भी किया हजरत खौला से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपनी बेटी कैसे दे सकता हूं जबकि उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया है। यानी तुमो शेज पन बोय तस्लीम कर्मुत, तो अब मैं अपने भाई को कैसे रिश्ता दूंगा। बहरहाल हजरत खौला से वापस गसन कमन निश जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारा माजरा बयान करती हैं। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनन कि अबू बकर सिद्दीक से कहो कि मैंने आपको दीनी भाई बनाया है, हकीकी भाई शनिया आसन क्या, इसलिए इसमें रिश्ते में कोई कुबाहत अगर उनकी मर्जी हो तो वो बहरहाल रिश्ता कर सकते हैं। बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत खौला रज़ियल्लाहु ताला वनन छ। बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त हजरत खौला से कहती हैं कि चलो सही तो बात है मगर मैंने इनकी मंगनी यथ वन आमतौर पर यथ वन क्या जोड़ जो थोमत। हजरत आयशा सिद्दीका की मंगनी इनसे पहले एक और शख्स से हुई थी, हजरत जुबैर इब्न मुतइम
यानी अमिस से आसन गमुत। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने से पहले ही किन से इनकी मंगनी हो चुकी थी, हजरत जुबैर इब्न मुतइम। यम कथ थे जहनस मज, इससे आपके एतराज़ात का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इनसे पहले ही किन के साथ मंगनी हो चुकी थी, हजरत जुबैर इब्न मुतइम। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने वादे के बहुत पक्के थे। वैसे तो सभी अरब वादे के बहुत पक्के थे, अगरचे वो मुशरिक ही थे। और फिर सिद्दीक अकबर यम किस पर हकन पन वाद फड़ित और फिर किन के साथ निकाह करते, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी बेटी का निकाह। इसलिए उमर वन मैं एक बार उनसे मालूम करूंगा, बकर मालूम कमन निश कि उनका क्या इरादा है। बहरहाल हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल ये जन हाल्ट या ये मान लीजिए ये बात यहीं रुक जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक इसी असना में कहाँ जाते हैं, हजरत जुबैर इब्न मुतइम के घर। बहरहाल वहाँ जुबैर इब्न मुतइम की माँ होती है, यानी अबू मुतइम की बीवी। बहरहाल उनसे हजरत अबू बकर सिद्दीक सारा माजरा बयान करते हैं कि तह वन तो ये आज तक तुहद क्या आयत राय क्या वन अत निकाहस मुतलिक। याद रखिए ये जुबैर इब्न मुतइम और अबू मुतइम यानी इनका ये पूरा घराना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई शदीद दुश्मन घराना था। यानी यम इंतहाई दुश्मन कमन हिंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत। जब इन्होंने सुना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक निकाह के बारे में आए हैं, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। हको पान नचिस हकन तुहंदिस घरस में निकाह कर, क्योंकि अगर हमने आप अपने बेटे का निकाह आपकी बेटी से कर दिया तो आपकी बेटी हमारे बेटे को नौज़बिल्लाह बददीन कर देगी। तो मैं समझा कि ऐसा करें क्या अपने दीन से ही फेर देगी। इसलिए हम उस और इन्होंने उस वक्त नाजेबा कलाम भी या नाजीबा बातें भी किसके बारे में कही, रसूलुल्लाह कि हम उस बेदीन नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक उस शख्स के साथ ये जन हको अत बेदीन घरस मज कर खानदर। इसी असना में अबू मुतइम भी आ जाते हैं। अबू मुतइम को अमिस जुबैर इब्न मुतइम से मोल। बहरहाल जब इन्होंने कहा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे भी बात की कि आपका क्या इरादा है। बहरहाल ना हम आपके साथ आपकी बेटी के साथ हरगिज निकाह नहीं कर सकते हैं, हम अपने जानी दुश्मन के दोस्त के साथ या उस घर में बेदीनों के घर में हम अपने बेटे का निकाह नहीं कर सकते हैं। बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा ये भी आप याद रखिए ये जुबैर इब्न मुतइम कौन होता है। जुबैर इब्न मुतइम इतना बड़ा शदीद दुश्मन होता है इनका घराना कि इन्हीं के जिसन अमसुंद गुलाम वहशी इब्न हरब, तो उन्होंने ही अबू मुतइम ने ही वहशी इब्न हरब को कहा था कि अगर आप हजरत हमजा को कत्ल करोगे या शहीद करोगे हम आपको इसके बदले में क्या कर देंगे आज। इतने शदीद दुश्मन थे ये। और इन्हीं की एक और बांदी भी थी गुलाम यजन ब्या हिंदा जिन्होंने हजरत हमजा का कलेजा चबाया था, तो ये इन्हीं के घराने में थे। यानी अबू मुतइम के ये दोनों क्या थे, गुलाम। इतने शदीद ये दुश्मन थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक द्राय और वापस दिल ही दिल में खुशी के, बहरहाल वो खुशी से फूले ही नहीं समाते थे, क्योंकि ये रिश्ते को रिजेक्ट तो रिश्ता कौन सा आने वाला था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बहरहाल अब गो अहंकार, क्योंकि अब तो कोई हिंड्रेंस नहीं थी। तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब मेरा निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ उस वक्त मेरी उम्र 6 साल थी, मैं उम्र शवरी। अच्छा फिर हजरत आयशा सिद्दीका इसी हदीस में फरमाती हैं फिर हम हिजरत करके चले गए कहां पर, मदीने पाक। अभी सिर्फ निकाह हुआ है। मदीने पाक में 8 या 9 साल गुजरने के बाद फिर हजरत आयशा 9 महीने गुजरने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका को फिर रुखसती होती है, यानी लगभग 23.5 या 23 चिकासन। उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र 9 साल थी। किस उम्र। और खुद हजरत आयशा सिद्दीका अपने निकाह के बारे में अपनी उस रुखसती के बारे में कहती हैं कि जब हम मदीने पाक चले गए तो यजन इब्न हारिस इब्न खजरज उनके घर में हम थे, तो मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी, तो मेरी माँ उम्मे रोमान ने मुझे बुलाया, यानी तेम जुत में क्या आ लो। तो मैं दौड़ती हुई अपनी माँ के पास चली गई। और रिवायात में इतनी डिटेल्स हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका फरमान कि मेरा सांस फूल रहा था, यानी मैं क्या खोदमुत दाव नित गयस बह माज आल पे मैं क्या सांस खोदमुत। बहरहाल
जब हजरत उम्मी रोमान के पास में पहुंची तो उन्होंने मेरे सांस संभलने तक इंतजार किया, यानी योता में शाहवायु फ्रख वक्त तो फिर उन्होंने मेरे चेहरे पर और मेरे सर पर थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये क्या फ्रेश। फिर मुझे चंद अंसारी औरतों के हवाले कर दिया जो कमरे में बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे तैयार किया, उन्होंने मुझे सजाया संवारा। इसके बाद चाश्त के वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मुझे क्या किया गया, मुझे रुखसती की गई। इंसान हम लोग में पता कि मेरी रुखसती होने वाली कुछ सिंपल खानदार आसन, और ये वाक़ा खुद हजरत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती है। अच्छा, ये हदीस बयान करने का मुझे एक मकसद है, वो ये है कि सही अहादीस में, और ये सब हदीसें जो हैं इनसे सनदन इंतहाई सही, बल्कि कुछ मुहद्दिसीन ने इसे तवातुर के दर्जे पर पहुंचा। तवातुर गो हदीस या तो कसरत सान सहाबी क्या हासिल करन। तो इन अहादीस से पता चलता है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा की उम्र निकाह के वक्त 6 साल थी और रुखसती के वक्त उनकी उम्र कितनी थी, 9 साल। अब इस बात पर इस्लामोफोब्स यमजन छ वो इंतहाई ज्यादा प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि नौज बिल्लाह मिन जालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पोडोफिलिया के शिकार थे, ये पीडोफाइला के शिकार थे। पीडोफाइल के में शख्स, वो शख्स जिसको बच्चों के साथ जिनसी शहवत या मैलान की बीमारी हो, नौज बिल्लाह मिन जालिक। ये इसका ये बहतान बनाकर और इन हदीसों को वो ये सामने रखते हुए कहते हैं कि नौज बिल्लाह मिन जालिक। आज तक अगर वनो, अगर आज भी हमसे कोई कहेगा क्या अपनी बेटी की शादी 6 साल की उम्र में करना चाहेंगे, इस क्या मानो, हाशोवकल्ला ना। 9 साल की उम्र में बेटी की शादी कराएंगे, इस क्या मानो ना। बहरहाल ये एतराजात उठाते हैं कौन, यम जर गैर मुस्लिम छ, हत्ता कि नाम नहाद आज के कुछ मुसलमान स्कॉलर्स भी इस पर एतराज करते हैं कि नौज बिल्लाह मिन जालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती हो गई कि उन्होंने एक कम सिन बच्ची के साथ निकाह दिया। बहरहाल हदीस मगर ऑथेंटिक और यही सही है। इस प्रोपेगेंडा में यूता शदीद प्रोपेगेंडा बाटलन या मुस्तशरिकीन कि आज के नाम नहाद उलमा भी इन हदीसों को किसी न किसी तरह तोड़ मड़ोड़ कर कहते हैं कि ये ज़ईफ रिवायतें हैं। आज इनका नाम नहाद उलमा आज जिनमें गामदी भी है, वो कहते हैं कि ये हदीसें जो हैं ये क्या हैं, ये ज़ईफ हैं, ये ना सच सही हदीस के। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ निकाह 6 साल की उम्र में, बल्कि वो हदीस में कहते हैं कि ये लफ्ज थे ये सित्तता अशरा, वो कहते हैं रावी से भूल हो गई है, उन्होंने सिर्फ सित्ततन कहा है। सित्ततन माने 6, असल में ये क्या था, सित्ततन अशरा, यानी उस वक्त हजरत आयशा की उम्र कितनी थी, 16 साल, और रुखसती के वक्त उनकी उम्र कितनी साल थी। मगर ये हदीसें या वो पाने कमजोर हदीसें बनाए, तमाम जो हमारे असलाफ हैं, बल्कि 19वीं सदी तक जो भी उलमा गुजरे, किसी ने भी इन अहादीस पर कोई ज़ौक़ का फतवा नहीं लगाया है। मगर आज कल के जो नाम नहाद उलमा छे, उन्होंने इन हदीसों को क्या गर्दाना है, इन प्रोपेगेंडा बहतान सेकुलर कुव्वत, लिबरल कुव्वत, रसूल पे बहतान, इन बहतानों से बचने के लिए उन्होंने इस पर क्या फतवा लगा दिया कि ये ज़ईफ हदीसें हैं। मगर बहरहाल ज़ईफ हदीस शरीफ के, बल्कि ये उन उलमा की गलती है। उलमा क्या कहें उनको कि उन्होंने हदीस के ही ज़खीरे को ही मशकूक बना दिया। अगर यही हम करेंगे, पका करेंगे भी कुछ चीज़ों पर एतराज, हम उनको भी फिर तोड़ मड़ोड़ कर कहेंगे कि ये हदीस भी ज़ईफ थी, ये कुरान भी ज़ईफ था। बहरहाल नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, फिर तो हमें तमाम इस्लामी लिटरेचर उस ज़खीरे पर ही हमें शक व शुबा हो जाएगा। इसलिए अमी चीज़न तावजी या इसको डिफेंड करने का ये तरीक़, ये कोई मजबूत तरीका, क्योंकि इससे तो पूरे इस्लामी लिटरेचर अहादीस के सारे ज़खीरे को ही हम क्या बना रहे हैं, मशकूक बना रहे हैं। दय्यम का। और दूसरी बात याद रखिए, कुछ उलमा जिनमें बड़े मुस्तनद जायद उलमा भी हैं, उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है इस वजह से कि वो कहते हैं कि इसमें एक रावी है, तमिस रावी उस रावी का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है। बहरहाल वो कहते हैं कि वो रावी कमजोर। अच्छा, वो रावी कुछ मैं आपको थोड़ी सी चेयर इसकी बताऊंगा इसको समझने के लिए। मैं गौरती के हम तैरनी फिक्री के बुखारी में यह हदीस है, बुखारी हदीस इसको बुखारी शरीफ को वो कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से इसको सुना, तमिश ना हम्माद। फिर वो कहते हैं कि मैंने इसे सुना
اس کا نام ہے شاید سفیان، شاید اس کا نام ہے یوزن امسی سنن سفیان بن عروہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عروہ سے اس کو سنا. سفیان بن عروہ سنا میں نے اس کو اپنے باپ عروہ سے سنا. عروہ کس یہ یاد رکھنا. عروہ یوزن حضرت عائشہ صدیقہ سس بیٚیہِ اکھ تٔمِس اوس ناو حضرت اسما. حضرت عائشہ صدیقہ سس بیٚیہِ کۄس حضرت، یہ تو آپ معلوم ہے حضرت اسما. حضرت اسما کے جو یوزن تٔمۍ سٕنٛدۍ خاندار اوس تٔمِس اوس ناو حضرت زبیر بن عوام. یہ سمجھیے آپ حضرت اسما سُنٛد یُس زن خاندار تٔمِس کیٛاہ اوس ناو؟ عشرہ مبشرہ منٛز چھِ یہ، یعنی 10 خوش نصیب صحابی جن کو رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی. ان میں سے ایک صحابی یہ بھی تھے. کون؟ حضرت زبیر بن عوام، جو حضرت اسما حضرت ابوبکر صدیق کی جو بیٹی تھی یا حضرت عائشہ سے بڑی تھی، ان کے جو یہ کیا ونن شوہر تھے. ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عروہ. تٔمِس اوس ناو کیا؟ عروہ. عروہ کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا ہشام. تٔمِس اوس کیا ناو؟ یاد تھٲیزیو تُہۍ. اب بتائیے یُس زن زبیر چھُ سُہ کیٛاہ واتہِ حضرت ابوبکر ییٚمِس حضرت عائشہس بیٚنہِ ہُنٛد خاندان. انہی کے بیٹے تھے کون؟ عروہ. عروہ کیا واتہِ وۄنۍ أمِس تٔمِس؟ بانجا باپتھر واتس نا باپت بینتھر ونتو تُہۍ یا بینتھر ونتو تُہۍ. یہ چھُ أمِس بینتھر. أمۍ سٕے عروہ سُنٛد نیٚچوٗ اوس ہشام. اب یاد رکھیے بخاری شریف چھُ ونان مےٚ ہسا بوٗز یہ حدیث ہشامس نش. ہشام کہتے ہیں میں نے یہ حدیث کس سے سنی؟ عروہ سے. عروہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث کس سے سنی؟ اپنے باپ کس سے؟ یہ زن چھ تٔمِس اوس ناو زبیر. زبیر کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث سنی. اب یہ چین کمپلیٹ ہو گئی نا. اس میں یہ کہتے ہیں یم زن نئی نام نہاد علماء وہ کہتے ہیں کہ ہشام جو ہے یہ قابل اعتماد راوی نہیں تھا. یہ نسا اس نے قابل اعتماد راوی. آخری عمر میں اس کو نسیان یہ زن کی بیماری پڑ گئی. نسیان کو امس مشد گژھان. مگر یاد رکھیے جو بھی یہ علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ جو بھی راوی جس چین میں حضرت امام بخاری نے لایا ہے اس کی ثقت پر اس کی مضبوطی پر کوئی بھی محدث اس پر شک نہیں کر سکتا. کیا کیونکہ حضرت امام بخاری نے اتنے سخت پیرامیٹرز تھمت کمن خاطر راوین. اس لیے ہشام کی کمزوری کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو ایک جواب ہے اس کا. دوسرا دویم کہا چاہیے میں ونتے یہ حدیث تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے. اس حدیث کو صرف ہشام نے ہی نقل نہیں کیا ہے بلکہ اس کی اور بھی چینز ہیں. کس چین؟ حضرت امام بخاری ونن میں نے اپنے استاد یہ زن امام زہری سے اس کو سنا. امام زہری ونن میں نے اس کو ابن اسود سے سنا. ابن اسود ونن میں نے اس کو عروہ بن زبیر سے سنا. عروہ بن زبیر ونن میں نے اس کو حضرت زبیر سے سنا. بتائیے اس چین میں کہیں پر ہشام آیا؟ تو ان لوگوں کا کہنا کہ ہشام کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف بن گئی. چلیے وہ حدیث اگر ضعیف ہے تو اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ون غرض میں یہ کہ اس حدیث سے اور اس چھانٹ پٹک سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ حدیث بالکل صحیح اور مضبوط ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر نکاح کے وقت کتنی تھی؟ 6 سال. اور اتنی احتیاط علماء یوتھا احتیاط کرمت. اب کچھ علماء نام نہاد علماء آج یہ میں اس لیے ڈیٹیل سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پر آپ کو کبھی کالج میں یا اسکول میں کوئی اعتراض کرے گا. بیاکھ کتھ ات مز کران ڈیٹیل اڑ ونان کہ اس کو راوی کرنے والے اکثر عراق کے لوگ ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ کوفی من ونان. اور کوفہ میں اکثر رہنے والے شیعہ تھے. کون تھے؟ اور شیعہ کی ضد ہے، شیعان سے نفرت اور ان کو عداوت ہے کس کے ساتھ؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ پر انہیں بہتان باندھا ہے کہ 6 سال کی عمر میں ان پر کیا ہو گیا. اس لیے یہ حدیث نہ سچن آتھینٹک. یہ کون کہتے ہیں؟ آج کچھ علماء کہتے ہیں. مگر یاد کرتا ہوں اس حدیث کو صرف کوفیوں نے نقل نہیں کیا ہے بلکہ اس حدیث کو مدینہ پاک میں رہنے والے محدثین نے بھی نقل کیا ہے. اور اس حدیث کو جو عالمی دنیا میں مکی یمزن محدثین انہوں نے بھی نقل کیا ہے. اور رائی کے محدثین رائی چھ ونن پریزنٹ ڈے یس زن آج چھ تہران ایران دارالخلافہ تہران اس کو پہلے زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ رائی. اور یاد کر تھاون ایران یس زن چھ یہ پہلے شیعہ ملک نہیں تھا بلکہ صفوی انویژن برونٹ ان دا 16th سینچری یس زن صفوی انویژن کو اس سے پہلے سارا ایران جو تھا یہ شافی مسلک پر تھا. تو ان کے علماء نے بھی ان حدیثوں کو روایت کیا ہے کہ حضرت امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت کتنی تھی؟ 6 سال. اور رخصتی کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 9. اچھا اس سے پتہ بہرحال ون گارج میں ام ساری ڈیٹیل یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر جناب محمد رسول اللہ کے نکاح کے وقت کتنی تھی؟ 6 سال. اور
یزن نکاح یا یزن کیا ونان اس نکاح یزن چھ یا یزن میریج کنزیومیٹ گو کنزیومیٹ مینز فرسٹ انٹریکشن یا سیکس یزن کیا تعلقات گئی وہ کس وقت ہو گئے 9 سال میں یعنی ازدواجی تعلقات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کات گمری میں اگر آج کی دنیا میں کسی کو یہ بات کہے کہ اشن ذہنس میں عقل میں زیون کی کیونکہ ہمارا ماحول ہمارا سماج یزن گمز کنڈیشننگ کت پہ کہ ہم نے اپنے ماحول میں کسی 9 سال کی یا 10 سال کی دلہن کو نہیں دیکھا اچھا وچمت کم برائٹ اس وچا کہاں ماری 9 ورین ہز یا 7 ورین نہ اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ معمول کے برخلاف اور اس باسن کہ اوہو کتنا غلط لیکن تصور کیجئے آج سے 1400 سال پہلے میں اس کے بدم شواہد ہوں یار مگر فی الحال میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ عرب کے اس وقت کے معاشرے پر دیکھو گے اس وقت دستور و رواج ہی کیا تھا یہی تھا بلکہ روایتیں میں ابھی میں آپ کو وہ روایتیں بھی دکھاؤں گا کہ صحابہ نے کتنی عمر کی یہ لڑکیوں کے ساتھ شادی کی ہے اور ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات کن عمر میں قائم کیے ہیں اور بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی کیا کیا ہے تھوڑا گیس لینگتھی 10 منٹ لگیں بھی بس مگر میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں آج ہی نشست میں ٹھیک ہے یہ گیس انٹرلنکڈ پانوئی دویم کت یزن یاد تھویں سہ یہ کہ اس معاشرے میں کی بات ہم ہو کر رہے ہیں یہ زن معاشرے کو آز برو تھوڑا ون بہت پران سان اگر تہ ترو پنس معاشرس پہ نظر آپ نے دیکھا ہوگا تہ وچمت پران زمان خاندر کران کورن زیادہ کھت زیادہ آسن تم 15 ورش 16 ورش 18 ورش مگر آج 26 سال کی لڑکی بھی کہتی ہے کہ ونچس بہ خاندرس قابل یا مے خاندر کرن اب یہ تو کچھ سالوں میں ہی چینج آ گئی یا آئی کتن ورین میں چینج 20 ورین 50 ورین میں بلکہ اگر آپ دیکھو گے بچے جننے کی حالت میں بھی چینج آ گئی ہے برو میں زنان آسن 10 شر 15 شر مگر آز اگر کنس 3 شر علاوہ لگ بھگ آز کن خاندان یا آز کن لڑکین بچہ آسن یہ کیا ہے یہ وتھ ایج یا وتھ یہ زن ات کیا ونان ٹائم دیر آر چینج جینیٹک چینجز تہ گژھان اور نشو نماز میں کیا گژھان چینج اب میں آپ کو تاریخی حقائق کچھ میں نے لکھ کر لائے ہیں ان کی روشنی میں کر میں آپ کو پروو کروں گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ وہ کوئی چائلڈ میرج نہیں تھی بلکہ اس وقت دستور ہی وہی تھا اور لڑکیاں بھی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی تھی اور بدم گواہی یا میں شواہد آپ کو اسلامی لٹریچر سے نہیں دوں گا بلکہ بدم گواہی کم مغربی لٹریچر سے جنہوں نے اعتراض کیا ہے کس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہرحال اگر اس کرو ڈیوائڈ اگر ہم اس ہسٹری کو ڈیوائڈ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان میں پیدا ہوئے قریش یہ سمجھے آپ بات قریش خاندان میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ دعوتک اعلان کور تو بتائیے سب سے کٹر دشمن کون بن گئے سارے کو کٹر دشمن کم بنے قریش کے ہی سردار مشرکین مکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اعتراضات اور الزامات لگائے قرآن اس کی گواہی دیتا کبھی آپ کو مجنون کہا کبھی آپ کو دیوانہ کہا کبھی آپ کو شاعر کہا کبھی آپ کو نعوذ باللہ من ذالک پاگل تک بھی کہا اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَمَجْنُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں ہیں آپ نعوذ باللہ من ذالک شاعر نہیں ہیں آپ نعوذ باللہ من ذالک آپ ذہنی توازن نہیں کھو چکے ہیں قرآن گواہی جو ہے لیکن ان حالات میں بھی قریش نے مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے مگر کانسی انسان کانسی مشرکان لوگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام کہ آپ نے ایک کم سن بچی کے ساتھ نکاح کیا کانسی آپ کسی قریش آپ کسی سیرت کی کتاب میں کسی حدیث میں کسی واقعہ میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کانسی مشرکین مکان یا مشرکین سردارن آسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگومت کہ ہائی چکورت عائشہ صدیقہ سے خاندر یا اکیس کم سن لڑکی سے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ کوئی مایو بات نہیں یہ تو وہاں پر عام کسٹم تھا کیونکہ اگر یہ نو کتھا کا ایسے یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماج نش ڈلت کا کام ایسے کرمت تب تو اس پر ضرور کیا ہو جاتا اعتراض یہ ایک دلیل ہے دویم کا اگر ہم لکھیں گے اگر اس میڈیول آتھر سے میڈیول پیریڈ ایک تو ہو گئی اینشنٹ ہسٹری دوسری ہو گئی کون سی ہسٹری میڈیول ہسٹری میں اگر تھی وشو یا رینیسنس پیریڈ اگر تھی وشو یا اگر آپ لکھیں گے انلائنمنٹ تھیوریز یا پیریڈ انلائنمنٹ پیریڈ کیا ونان
एनलाइटमेंट पीरियड बुझ पढ़ लेकिन आपको तो ये समझ आए एनलाइटमेंट पीरियड पीरियड्स जब मगरिब ने इल्मी तौर पर तरक्की कर दी उसको वो कहते हैं एनलाइटमेंट पीरियड। यथ मज बड़े बड़े स्कॉलर्स मगरिबस मज आए जैसे न्यूटन आया, प्रिस्टली आया, डेविड ह्यूम, डेविड लॉक या जॉन लॉक, एडवर्ड गिबन और साइमन ओकली या इसी तरह से कांट, ये जन आए बड़े बड़े स्कॉलर्स। तो इन्हीं की फिलॉसफी पर आज भी मगरिब चलता है। उस पीरियड को कहते हैं एनलाइटमेंट पीरियड, यानी सु पीरियड यथ मज मगरिबन इल्मी तौर पर क्या कर वारियत। अब उनके हवालात आप देखिए, उस पीरियड में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत सारी किताबें लिखी गई, यानी कांटन तिलीश, इसी तरह से प्रिस्टलियन तिलीश किताब, इसी तरह डेविड ह्यूम ने किताब लिखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने इंतहाई ज्यादा गुस्ताखियां की हैं इन किताबों में। मगर जब जिक्र आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का किन के साथ, हजरत आयशा सिद्दीका के साथ, तो आप देखिए उन्होंने क्या लिखा। किताब द लाइफ ऑफ मोहम्मद, वो मोहम्मद नहीं लिखते, वो उसको क्या लिखते थे MUHAMMET मोहम्मद। और आप इसको इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। मैं इंटरनेट पर कर सर्च और मैंने फिर इनको प्रिंट किया है। अगर तुम वेसो बह कर शेयर तक ग्रुपस में ताकि आप पढ़ोगे इसको। एक किताब लिखी है किसने, द लाइफ ऑफ मोहम्मद, ये लिखी है प्रिडेंट ने। प्रिडॉक्स थर्ड पाई और बहुत बड़ा स्कॉलर माना जाता है और फलसफी माना जाता है किसका, मगरिब का। इन्होंने ये किताब लिखी है इन 1697 इन द 17th सेंचुरी। उसमें लिखते हैं किताब विशु नाव क्या, द ट्रू नेचर ऑफ इम्पोस्टर फुल्ली डिस्प्लेड इन द लाइफ ऑफ मोहम्मद। अगर आप डिक्शनरी माना पढ़ोगे इम्पोचर का, इम्पोचर मीन्स डिसीवर, धोखा देने वाला, और नौज बिल्लाह मिन जालिक, इसका एक और इम्पोस्टर माने डाकनर मुनाफिक, नौज बिल्लाह मिन जालिक, यानी दुनिया का सबसे बड़ा दुपन दलाज पर मानो, उसका लिखा है और किसको तशबीह दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब देखिए उसके बारे में क्या लिखते हैं ये, टू स्ट्रेंथन हिमसेल्फ द मोर ही टुक 2 अदर वाइव्स इन हर सिटीड, यानी हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद अब ये कहते हैं कि ही टुक 2 more wives in her state, उसने 2 बीवी के साथ और निकाह, जिनका मैंने कहा खौला ने लाया था किसको, हजरत सौदा को और हजरत आयशा को। अच्छा सिटी कौन कौन थी, आयशा द डॉटर ऑफ अबू बकर एंड सौदा द डॉटर ऑफ जमा, हजरत सौदा बिन जमा। इनके बारे में कहते हैं एंड व्हाइल आफ्टर ही एडेड टू देम हफ्सा द डॉटर ऑफ उमर, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, whereby making himself son-in-law of 3 of the principal men of his party, he did by the alliance the more firmly tie them to his interest। यानी उनके साथ मजबूत ताल्लुकात को कायम करने के लिए इसने इनके साथ क्या किया, ताकि यम जन सारे खोत अमिस एतमाद वाल 2 नफर अस, इनके साथ घरेलू ताल्लुकात कायम करने के लिए इसने हजरत उमर की बेटी से भी शादी की और किनके साथ, हजरत उमर से। अब देखिए आयशा was then but 6 years old, ये कौन लिखता है, प्रिडॉक्स। आयशा was then but 6 years old and therefore he did not bed her till 2 years after, हालांकि 2 years नहीं है, ये कितने years है, यानी he did not bed her means कि उसने उसके साथ अज़दवाजी ताल्लुका तब तक कायम नहीं किए, कब तक, 3 साल। अब 3 वर्ष क्या रुके, ये तो सोचने की बात है, वरना अगर निकाह हो गया 6 साल की उम्र में, अगर नौज बिल्लाह मिन जालिक वो पीडोफिलिया के शिकार होते, नौज बिल्लाह मिन जालिक, तब तो 6 साल की उम्र में ही निकाह हो गया था, अब तो लाइसेंस हो गई थी उनके साथ अज़वाजी ताल्लुकात करने की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल क्यों रुकते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है, he did not bed her till 2 years after when she was full 8 years old, actually it is 9 years old, for it is usual in those hot countries as it is in all over India which is in the same climate with Arabia for women to be ripe for marriage at the age and also bear children the following year, यानी it was usual। ये कौन लिखता है, इस लेखन को प्रिडॉक्स। अब दूसरा देखिए आप, मार्गरेट वेड लेबर्ग जी फिलोसफर अमुक, तो इन्होंने लिखा है इट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड दैट मेनी मेडिवल विडोज वर नॉट ओल्ड। मेडिवल पीरियड में जो विडोज होती थी, विडो कम वन यमिस खामत बार यस मोंड गैस तुम आसने ज्यादा ओल्ड आसन। अब आप चौंका देने वाली हकीकत है, देखिए इंपॉर्टेंट हियर इज वायर ऑफन मैरिड बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 10, यानी अक्सर औरतों की शादी किस साल में होती थी, 5 से 10 सालों में। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कब की थी इसकी शादी, 6 साल।
तो फिर अज़दवाजी ताल्लुकात कब कायम, फिर तो ये यूजुअल था. अच्छा, important here is while often married between the ages of 5 and 10 and might find themselves widowed while still in their teens. अभी वो टीन्स यानी 1913-14 में आज वो कभी कभी क्या हो जाती थी, विडोज भी हो जाती. सोरस ए मिडिवल मिशनरी मार्गेट वेड डेबार्क पेज नंबर 52 ये इसमें है. अच्छा, दूसरी बात, प्रोफेसर रिचर्ड वर्टली एंड स्टीफन स्मॉलबून ये अपनी किताब में लिखते हैं, ये जन किताब छी ये ब्लो रिपोर्ट्स इन मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटीज. इन मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न यूरोप, ये तो यूरोपियन सोसाइटीज की बात है. अब खुद अंदाजा कीजिए किसमें, अरब जो बहुत गर्म इलाका है, और ये कम लोग बसन कबायली लोग. आज भी अगर आप देखेंगे हम में और बकरवालों में कितनी फर्क है. तुम कुवैत तुम कुवा सारे ज्यादा, और आज भी बुश हालांकि सामान पत्थर में टूट दूर. आप वहां देखिए, वहां भी बच्चियां 13 साल 14 साल में आज भी शादी करती हैं. कुजा तम दुह बकरवाल रसूल की जो जिंदगी वो भी ट्राइबल जिंदगी बकरवाल. अब उनके यहाँ तो ये नॉर्मल रूटीन थी. तो ये लिखते हैं इन मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटीज द एज ऑफ मैरिज रिमेन्ड लो विद डॉक्यूमेंटेड केसेस ऑफ ब्राइड्स एज यंग एज 7 years. यानी डॉक्यूमेंटेड केसेस दीज आर यानी ये तो लॉ के मुताबिक कि एज यंग एज 7 years although marriages were typically not consumed until the age reached puberty. ब्लॉक 2004. अब देखिए शेक्सपियर जूलियट से पाए क्वेश्चन. शेक्सपियर ने एक बहुत ये क्या मशहूर प्ले रोमियो एंड जूलियट का किस, वो तो वो रोमांस पर बनी हुई एक ये मास्टरपीस. शेक्सपियर जूलियट वाज जस्ट 13. यानी जूलियट का जो किरदार उसने लिखा है उसमें वो कितनी थी उसमें. एंड देयर इज नो हिंट इन दिस प्ले दैट दिस वाज कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्शनल. कहीं पर इसमें यह नहीं दिखाया गया है कि यासो एक्सेप्शनल केस कि उसने जूलियट की उम्र कितनी दिखाई है. यानी बाकी रवाज तो उसको जी. द सिचुएशन वाज सिमिलर ऑन द अदर साइड ऑफ अटलांटिक. यानी अटलांटिक के दूसरे साइड में भी ऐसी ही क्या थी सिचुएशन थी. ये कौन कहता है, ये जानी ब्लॉश वन. अब सेक्स एंड सोसाइटी ये पब्लिश हो गई है किताब क्वेश्चन. ये सोरस सेक्स एंड सोसाइटी है किताब मार्शल कैवेंडिश ने लिखी है, पब्लिश्ड इन द ईयर 2010 पेज नंबर 54. अब ये देखिए अंटिल द लेट 20th सेंचुरी किसको 1900, और इसमें इसने बाज़ाब्ता डेट भी दिया है 1967 का. आप देखिए अंटिल द लेट 20th सेंचुरी इवन इन 1967 यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स आज कारण से सारे को ज्यादा अटैक्स और जो आज औरतों के हुकूक के अलमबरदार बने हुए हैं. यूएस एज ऑफ कंसेंट लॉज स्पेसिफिकली नेम्ड मेल्स एज परपिट्रेटर्स एंड फीमेल्स एज विक्टिम्स following English law in which the age was set at 12 in 1275 and lowered to 10 in 1576. Age of consent in the American colonies was generally set to be 10 to 12. यानी एज ऑफ कंसेंट लड़कियों ने उसको 10 to 12. The laws protected female virginity. अच्छा, ये लॉ किस लिए बनाया गया था, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फीमेल वर्जिनिटी. पर कौशिक पर वन तमन जमान में सारे खुद ज्यादा बड़ ये जन दौलत या सारे खुद बड़ ये जन मता अकिस खान ये लड़की मान सो तम पाक दामनी मान. यानी यह गम पान कंवारा पान शेयर कोर्मुत, बल्कि यम सात निकाह कर यह गि पाक और साफ पाक दामन. तो उस वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस ने लॉ बनाया था अप टू द 20th सेंचुरी. ये था कितना, दैट एज ऑफ कंसेंट वाज 12 to 14. अच्छा, ये तो हो गया ये. अब देखिए आप रिचर्ड ए पोन्सर एंड कैथर बी सेलबर्ग लिखन द लॉ गवर्निंग द एज ऑफ कंसेंट हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग दिस सेंचुरी. ये पब्लिश हो गई है किताब इन 2012 यानी ओत्र 2012 की किताब गमत. ये कहता है द लॉ गवर्निंग द एज ऑफ कंसेंट हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग दिस सेंचुरी. ड्यूरिंग दिस सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, इन द 21st century. Most states codified a statutory age of consent during the 19th century and the usual age was 10 years. यूजुअल एज कौन सी थी इसकी मैरिज की, 10 years. अब बताइए ये तो 19th सेंचुरी की बात हो रही है 1965 की. अब 14th सेंचुरी में ये साथ अंदर कोस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14th सेंचुरी का वो तो 6th सेंचुरी थी. 6th सेंचुरी उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका के साथ शादी करते हैं किस वक्त. अच्छा, अब देखिए द 19th सेंचुरी इन द 19th सेंचुरी मॉरिन दबाग ये लिखन पैरेंटल किडनैपिंग इन अमेरिका ए हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एनालिसिस पेज नंबर 128.
in the 19th century, the minimum age of consent for sexual intercourse in most American states was 10 years. American states में 19th century की बात है. The minimum age of consent for sexual intercourse was 10 years. 10 साल. In Delaware, it was only 7 years. यानी यूएसएस में स्टेट है डेलीवेयर. तच 19th century 1967 तक वहां नॉर्मल एज जो लड़कियों के लिए थी निकाह करने के लिए वो कौन सी थी. अब ये तो 19th century की बात है. अब खुद अंदाजा लगाइए किस में. तम सातन माइक ए मेरिज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वो लिखते हैं दीज अर्ली लॉ स्पेसिफाइड दैट अ गर्ल कंसेंट टू सेक्स हैड टू बी एट लीस्ट 10 to 12 years. अमेरिका में लॉ कि गर्ल कंसेंटिंग टू सेक्स यानी अगर वो सेक्स करना चाहती थी एंड फॉर लॉफुल मीन्स उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए थी 10 to 12 years old in most states with a few specifying ages as old as 14 or 16. In Delaware जिसका अभी जिक्र आया the age of consent was 7 based on ancient English laws setting age scale. अब ये तो हो गया यहाँ पर. अब देखिए in 1962 पर ऑथरिज का The American Law Institute recommended that the legal age of consent to sex, that is the age below which sex should be defined as a statutory rape. यानी इसके नीचे इसको कहा गया है कि यासा को कुछ जुल्म लड़कियों के साथ इसको रेप माना जाएगा. इसके अलावा जब उम्र होगी तो उसको माना गया कि the girl is ready for having sex. तो वहां कहा गया that is the age below which sex is defined as statutory rape be dropped in every state to age 10. इसको कहां पर लाया जाए age 10. अच्छा, in fact, until the mid 1960s, the legal age of consent in Delaware was 7, killing 1965-2010. So a 50-year-old man could legally have sexual intercourse with a 7-year-old girl. यानी लीगली है कैसे सेक्स केमिस से. ये मैंने आपको हवाला जात दिए किन के मुसन्निफीन से मगरिबी मुसन्निफ से एम से ताकि आपके दिलों में इत्मीनान बैठे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत आयशा सिद्दीका के साथ निकाह किया ये कोई चाइल्ड मैरिज या नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये कोई पीडोफिलिया का कोई केस नहीं था. बल्कि उन सोसाइटीज में एंशिएंट सोसाइटीज में ये तो मगरिब में भी ऐसा होता था. तो उन खाना बदोश इलाकों में और उन गर्म इलाकों में जहां कुआ और जहां पर ज्यादातर कुआ जिस्मानी कुआ वो तो पहले ही राइप हो जाते हैं तो वहां रसूलुल्लाह ने कोई ज्यादती या कोई चाइल्ड मैरिज का केस बल्कि रिवायत में आता है. हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मे रोमान नहीं और हजरत आयशा सिद्दीका क्या तैयार कर यानी उनको तैयार किया किसके लिए रुखसती के लिए. तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ही पहुंचाया इनको किन के घर हजरत या हजरत रसूलुल्लाह की खिदमत में. अब बताइए 3 साल इंतजार का मकसद क्या है. ये वही मकसद था कि अब हजरत उम्मे रुमान जानती थी क्योंकि सारे को ज्यादा आसन करीब कोड़ कोस मोज माज उसमें पता कि अब ये अज़वाजी ताल्लुकात कायम करने के लिए क्या है बिल्कुल तैयार है. इसलिए यहीं से उन्होंने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनको विदाई की. आखिरी का बात ठीक है काफी मगर ये जरूरी है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हजरत आयशा सिद्दीका से क्या कोर निकाह साइकोलॉजिकली वुचना आमुत. ये आज के साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं अगर अल्लाह ताला बच्चे कंसी थी करने चाइल्ड अब्यूज यानी अमिस थी करने सेक्सुअल अब्यूज कंस बच्चे से उसमें साइकोलॉजिकल यूजन क्या चेंज तमिस मज यिवान. पहली चेंज ये आती है कि सो रोजान इंतहाई डरी सी और सहमी सी सो हकन पन बयत. मगर हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में आता है सबसे आउटस्पोकन यजन खानदारी रसूलुल्लाह हजरत यानी सारे खुद कॉन्फिडेंट सारे खुद ज्यादा इल्म में बढ़ चढ़ कर वो कौन थी. अगर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक या ऐसे का चाइल्ड अब्यूज केस वो तो सप्रेस हो जाती उसकी नशो नुमा हो जाती उस तरह से तमिस आसे तिस गो नहीं. बल्कि रिवायत में आता है हजरत अबू हुरैरा को छोड़कर सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत किन्होंने की है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हु. बल्कि 2210 रिवायत कम कर हजरत आयशा सिद्दीका उसमें से 174 हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है. मुत्तफ़क़ुन अलैह के कम बुखारी और मुस्लिम और ना इस 54 खाली बुखारी में है 68 खाली किस में है मोस्ट ऑथेंटिक हदीस तुम सारे को ज्यादा रिवायत कर हजरत आयशा सिद्दीका और हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला का फरमान दपन अगर रसूलुल्लाह के इस दुनिया से नकल करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर खिलाफत में ही अभी अबू बकर सिद्दीक जिंदा थे अगर हमें किसी मसले में कोई तरद्दुद होता अगर कोई मसलस में गसे क्या इश्काल गसे कि या क्या सही जवाब
तो तमाम कुबार सहाबा के होते हुए भी सहाबा किसकी तरफ रुजू करते थे? हजरत आयशा, और वो मसले का जवाब बता दी। यो इल्मी मकाम कुमन हजरत अबू बकर सिद्दीक या हजरत आयशा सिद्दीका, बल्कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमान कि वरासत के जो इल्म है, वरासत के इल्म शरीयत में सारे खुद ज्यादा मुश्किल इल्म मान। और रिवायत में आता है रसूल फरमाओ कुर्ब क़यामत अलामत में अलामत के इल्म को उठाया जाएगा, और सबसे पहले कौन सा इल्म उठाया जाएगा? वरासत का इल्म, क्योंकि सारे खुद टफ सारे खुद सख्त इल्म कोस। मगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमान कि वरासत के इल्म में सबसे माहिर अगर कोई था तो वो कौन थी? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि 4 सहाबे निश कुरान हेशन, यानी ये अथॉरिटी रसूलुल्लाह में अथॉरिटी दी। एक उनमें थे सबसे पहले हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे थे हजरत सालिम यो हजरत अबू हुज़ैफा आजाद करदा गुलाम, सालिम मौला वन। तीसरा था हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु, और चौथे थे हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु। यम 4 सहाबी यमन निशानदेही केमस करमज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तमाम सहाबा कुरान को अगर कोई इश्काल किसी आयत में आता है इसको समझने में कुमन कुन रुजू कर यमन 4 सहाबियन कुन। मगर हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमान दपन अगर इनको भी किसी आयत में इश्काल होता, अगर यमन 4 ते गसे कुन आयतस में कुन तफसीरस में इश्काल, तो ये रुजू करते थे किसकी तरफ? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ। ये इल्मी मकाम था किनका? जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा ये थो आखिरी कथ याद आज के दरस। रसूलुल्लाह के साथ निकाह हुआ 6 साल की उम्र में, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह पढ़ाया, तो फिर 9 साल की उम्र में रुखसती हो गई। उस वक्त हजरत आयशा की उम्र कितनी थी? 9 साल। रसूलुल्लाह की उम्र 54 साल थी। फिर 9 साल हजरत आयशा सिद्दीका रसूलुल्लाह के साथ रही। कतर वरिया रोज तो 18 साल की थी हजरत आयशा सिद्दीका जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। मैं ना अदी विडोज वायर इन देयर टीन्स, यानी 18 वरिश। फिर 57 हिजरी में हजरत आयशा सिद्दीका का इंतकाल होता है। उस वक्त उनकी उम्र 67 बरस थी, यानी 66 या 67 थी। 67 वरिश मज़ार बकी में उनको दफन किया गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और अम साथ उनकी वसीयत के मुताबिक रात को ही जनाजा लिया गया, और रात से आए तुम दफन करना जनाज पढ़ना केम हजरत आयशा सिद्दीका। बहरहाल इनका इल्मी मकाम, इनका तकवा का मकाम वो तो बहरहाल लोगों से मख्फी बात। और दयम कथ ये अगर यह अल्लाह ताला दिन बजा साइकोलॉजिकली आमुत ट्रामा अमिस कर बचपनस में, रसूलुल्लाह के बाद ये कितने साल जिंदा रहती हैं? इस रोजन कमो बेश 47 ईयर्स। अम पत कभी तो वो बताती कि रसूलुल्लाह ने मुझे साथ ऐसे ज्यादती की है। मगर रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह के जाने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ रसूलुल्लाह के मोहब्बत के, उनके इज्जत की, तुमो कुता इकराम, तुमो कुता इज्जत, तुमो कुता मोहब्बत जिसमें कुमा यमन वरियन में सिर्फ उनके किस्से हजरत आयशा सिद्दीका से सुने गए हैं। और दूसरी बात, अगर हजरत आयशा सिद्दीका बचपन ऐसे सप्रेस गोमुत, अगर उनको ऐसे बचपन में अब्यूज आमद करने, सेक्सुअल अब्यूज नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो उनकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से डेवलप नहीं होती। हजरत आयशा सिद्दीका पर्सनैलिटी दैट इज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू चाइल्ड यमिस जन चाइल्ड ये सेक्स अब्यूज आइस गोमुत कथ मज। बल्कि हजरत आयशा सिद्दीका ही वो खातून है जिन्होंने जंगी जमल में, अगरचे वो जंगी जमल किन के साथ हुआ? हजरत अली के साथ, मगर योर लीड कारण सिपह सालार कस हजरत आयशा सिद्दीका। तो बताइए क्या ये कंट्रास्ट नहीं है? अगर उन यमजन इल्जामात आमद लगाने कमन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहरहाल ये सारी दलील वन में अक गारस, आपको बातें बहुत कम याद रही होंगी, ये रेफरेंसेस थे कम रोज में याद, मगर कम अज कम आपको इत्मीनान हुआ होगा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह हजरत आयशा सिद्दीका के साथ किया, ये कोई उस माशरे में कोई नौ कथा का नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक आयशा सिद्दीका के साथ कोई सेक्स अब्यूज या चाइल्ड सेक्स अब्यूज की कोई बात नहीं है, बल्कि दैट वाज नॉर्मल इन दैट सोसाइटी। और इसके रेफरेंसेस में मैंने आपको पेश की। आखिरी कथा भी आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, आज से इंटरनेट आप सर्च कीजिए कि कितने लोगों ने, बड़े बड़े किंग्स ने, बड़े बड़े नामवर लोग, उसमें आप अकबर देखिए, उसमें आप हजरत इसके फातिह सिंध जिसको कहते हैं, हजरत मोहम्मद बिन कासिम, उनके हालात, तारिक बिन जियाद के हालात देखिए,
کتنی کم سنی کے عمر میں انہیں کون سے کارنامے انجام، دیٹ از نارمل. آج اگر ونو بہوری صبح سے سپہ سالار فوج بنے گا، آپ اسامہ بن زید کی عمر دیکھیے جب وہ سپہ سالار بنے. بہرحال یہ کوائٹ نارمل تمن دہن. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام یہ باضابطہ رحمت دین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں ان میں کوئی شہوت پرستی کا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی پیڈوفیلیا کا کوئی بھی عنصر نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام الزامات سے بری ہیں، اور ان کے ان نکاحوں میں بھی امت کے لیے بہرحال ایک بہترین نمونہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سدین ایسی کتھ پر عمل کرو توفیق. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.